So good morning to all of you. Good morning, sir. So let us start today's session. Uh, Already we are continuing different sort of systems. I think today we'll complete all the systems. The remaining Good morning, sir. good morning. Remaining जो system है वो है invertible and non-invertible. These are very easy. Okay. जैसे तुम्हारा लिनियर नॉन लिनियर और टाइम इनवेरिएंट बहुत सारा चीज था वहाँ पे। यहाँ पे जो तुमको याद दिमाग में रखना है वो चीज है you are having systems, you are having inputs and corresponding you are having outputs. So for each and every input, if you are distinct output, okay, you are having the inputs, correspondingly you are having the outputs. For individual cases, okay, if you are having distinct output, मान लो if you have x1 input, उसके लिए जो आउटपुट होगा x2 के लिए जो आउटपुट होगा वो both the outputs should be distinct. They should not be equal or similar. Okay, so just you take one example, then it will be clear. So that's why I have written here, if distinct input produces distinct output, that is the thing. That means हर इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट होना चाहिए. Okay, so if that happens, then it is called invertible system. So मान लो we are having some example. Okay, that is x of t is equal to y of t is equal to 4xt. That is a kind of input output relation. Now what we have taken the input, primarily we have taken firstly 0. So if x2 is 0, definitely there is a relation, a linear relation, output should be 0. Now take xt is equal to -1. So if xt is -1, so output is -4. Now if you take xt is equal to +1, then see here yt is +4. So that means for different input ke liye we are having different output. So see, this is 0, this is -4, and this is +4. So all the outputs are unique. Okay, they are not similar. Okay, all are different. So distinct input के लिए distinct output है. If that happens, then it is called invertible system. So take one more example. See, this is yt is equal to x square t. Now देखो यहाँ पे distinct output मिल रहा है कि नहीं. देखो xt is equal to 0 है, so yt is 0. xt is equal to +1 है, so output is +1. xt is -1, then also we are getting the similar output. देखो इसलिए मैंने second bracket दे दिया यहाँ पे to make you understand. Now if you choose xt is equal to +2, then also we are having +4, and -2 के लिए भी +4 है. So they are identical, they are same. So that's why we may conclude this system is non-invertible system. ये invertible नहीं है, ये non-invertible system है. इसलिए मैंने बोला तुम ध्यान में रखिए, जब डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट मिलेगा तो डेफिनेटली ये इन्वर्टेबल सिस्टम है. जब नहीं होगा, that definition does not hold, that means it's simply non-invertible systems. Okay, so these are simple examples. Okay, so that's why you don't have any problem. So we'll take some critical also. Okay, so that is also one simple example. Yt is equal to mod of xt. ठीक है, तो mod of xt का मतलब क्या है? Always it will give you the positive value. तो mod का value always positive होता है. So you people know that very well. So whatever be the input combination, see at the output we are getting similar kind of outputs. So that's why this is also non-invertible
system. Now, to test the system whether it is invertible or non-invertible, sometimes we may use some kind of test signal. What I told you, sometimes we can use different test signals to get the idea about the system behavior, whether it is invertible or non-invertible. So what are the test signals? You know all these signals very well. UT, unit step function. Okay, minus UT is a negative unit step function. Del T is a unit impulse functions or delta function. Negative delta function. 2UT scaling is there. 2UT, 2 del T. So that is for your continuous time signal. Here is also discrete. UN, minus UN, del N, minus del N, minus 2 UN and 2 del N. So take one example here, which is something different from the other, where we have taken few examples. So yt is equal to sin t into xt. It's a different kind of input-output relation. The example is yt is equal to sin t xt. Now we'll use test signal, anyone. So here we have taken test signal xt. That means test signal means we are going to assume test signal as input. Remember it. We are going to choose the test signal as input. So here xt is equal to del t. We have chosen here xt is equal to del t. तो yt क्या होगा? ये sin t into del t. So you people know that where the delta function is exists, you know that at origin. At t is equal to 0, there delta function only be there. Delta t is equals to 1, sir. Delta t is equal to 1 at t is equal to 0. So that means the existence of the delta function is at origin. Okay, if it is not shifted. Okay, so if you will know that it's a delta functions unit impulse function and it exists at origin, that is t is equal to 0. So you will know that if xt into del t होता है तो ये x of 0 होता है. You will know that very well. Okay, you know all these things now. So it should be sine of 0. So what is the value of sine 0? You everyone know sine 0 is 0. So what happens if xt is equal to delta t, then we are getting the output as 0. Okay, so now test for another input combinations. Now I have taken x2 second input as 4 delta t. Okay, if we in this case also if we get the different outputs, then we can conclude. If we don't have the different output, then also we can conclude. So whether it is invertible or non-invertible, then will be find out. So now take xt is equal to 4 delta t. That is the different input we have taken. पहले ये क्या था del t था, यहाँ पे क्या लिया हम लोग 4 delta t ले लिया. तो 4 delta t के लिए क्या होगा, ये भी तो डेल्टा फंक्शन वो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो चीज जीरो पे जीरो. हाँ जीरो में ही होगा. करेक्ट, जीरो में ही होगा. एनी अदर प्लेस से ये नहीं एग्जिस्ट होगा. तो इसलिए साइन टी फिर जीरो हो गया है कि नहीं, साइन टी फिर भी जीरो हो गया. सो वी हैव टेकन टू डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस बट आल्सो वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट. सो यूनिक आउटपुट नहीं मिला हम लोगों का, इसलिए ये सिस्टम है नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम. आई हैव रिटन हियर देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड for the betterment as for two different inputs the same output generated. So that's why it is non-invertible systems. Okay, now go for some other examples. Y of n is equal to xn minus 1. So you can take some test signal as input, that is un. So yn क्या होगा, yn is equal to un होगा, un minus 1. तो ये है तुम्हारा पहला आउटपुट फॉर इनपुट दिस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए. नाउ वी हैव टेकन अनदर इनपुट दैट इज माइनस ऑफ un. पहले क्या लिया था, un लिया था, पॉजिटिव सिग्नल लिया था. यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सिग्नल जस्ट ऑपोजिट ले लिया. तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, माइनस ऑफ un होगा, माइनस ऑफ un माइनस 1 होगा. इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. तो un माइनस 1. ना देखो पहले जो इनपुट कॉम्बिनेशन un था उसके लिए जो आउटपुट है, और नेक्स्ट में हम लोग जो डिफरेंट इनपुट लिए थे माइनस ऑफ un, देन आल्सो वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट. सो ये नॉन इन्वर्टेबल होगा. ठीक है, और अगर मैंने एग्जांपल दे दिया घर में देखो, सिंपल सा है. सर पहला वाला एग्जांपल से समझाइएगा ना सर एक बार. सर पहला वाला सर जो लिए डिस्क्रीट वैल्यू वाला पहले जो सर
No, sir. No, sir. It's discrete वाला, sir. Y of n, sir. ओके ओके, ये सॉरी सॉरी ये वाला। Yes, sir. ओके, तो देखो y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1 है। तुमको क्या बोला मैंने, समटाइम्स यू टू चूज सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट सिग्नल एज इनपुट, हियर वी हैव टेकन टेस्ट सिग्नल एज un, ठीक है। तो un क्या होगा, तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एज यू हैव टेकन द इनपुट एज un, सो xn un हो जाएगा, xn माइनस 1 un माइनस 1 हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा इनपुट आउटपुट का रिलेशन हो गया। Now in the second case, case 2, we have taken input, for input देखो यहाँ पे लिख दिया है शॉर्टकट में, for input minus of un, so ये क्या होगा, yn is equal to क्या हो जाएगा, ये minus of un होगा, और xn minus 1 क्या हो जाएगा, minus of un minus 1 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस un इंटू un minus 1। तो देखो दोनों में से आउटपुट सेम है, un माइनस 1 है, यहाँ भी un माइनस 1 है। तो बोथ द केसेस द आउटपुट आर सिमिलर एज but though we are applying different kind of input, so different input combination के लिए we are getting the similar kind of output, so the system should be non-invertible। Getting my point? Input combinations are different। हाँ तो Hello, sir. हाँ बोलो। हाँ सर तो यहाँ पे फॉर इनपुट UFN सर माइनस UFN सर कंसीडर क्यों किए सर? ये तुम डिफरेंट इनपुट लेना है। यस सर। हाँ डिफरेंट इनपुट है, तुम 2 UN भी ले सकते हैं, 4 UN भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमको इन्वर्टिबल होने से तुमको टेस्ट करना है, एटलीस्ट वन वैल्यू तुम्हारा सेम आ जाएगा तो तुम उसको नॉन इन्वर्टिबल बोल सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट एनी वन। तो यहाँ पे देख हम लोग मिल गया, UN जब लेते हैं हम लोग तो जो आउटपुट मिलता है, if we taken minus UN then also we are getting a similar kind of output, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, नॉन इन्वर्टिबल हो गया। तो और बहुत सारा तुम्हारा तो बहुत सारा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा, है कि नहीं, तो और कोई जरूरत ही नहीं है टेस्ट करने के लिए। जब तुमको दो आउटपुट में सिमिलर काइंड आ जाएगा ना, वो तीसरे बार लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट दो आउटपुट सेम हो जाएगा ना, तो वो डेफिनेटली नॉन इन्वर्टिबल ही होगा, इन्वर्टिबल कभी नहीं होगा। इसलिए हाँ, इसलिए हम लोग u माइनस एन ले लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत सारा लिए थे, सिमिलर सिंपल केस था, यहाँ पे -1 ले लिया था, +1। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग un माइनस ऑफ un ले लिया। तो ये भी और एक एग्जांपल है, तो तुम घर में देखो, बहुत सारा एग्जांपल मैंने बता दिया। तो नाउ ये सिंपल सा चीज है, ये छोटा मोटा है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तुम कब वन सिस्टम को स्टेबल कहेंगे और कब ये अनस्टेबल होगा। तो ये वन टर्म मैंने लिख दिया, बीबो, दैट मींस बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। जब तुम्हारा इनपुट बाउंडेड होगा, आउटपुट भी बाउंडेड होगा, ठीक है। तो ये बाउंडेड का मतलब क्या है वो तो मैंने बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। तो बीबो स्टेबल, देख तुम्हारा टेक्स्ट बुक जो पढ़ेगा ना, तो बीबो स्टेबल, ये बीबो टर्म तुम्हारा आ जाएगा बीच बीच में, बीबो, बाउंडेड, बी फॉर बाउंडेड, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो ये बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड मींस देखो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, xt is the input, okay, xt is the input, you have to know that xt or xn whatever be the scenario। ये देखो ये इंफिनिटी और 0 की अंदर में है, ठीक है, कभी भी इसका वैल्यू इंफिनिटी नहीं है, इसलिए इसको इनपुट को हम बाउंडेड कहते हैं। जब तुम्हारा इनपुट का वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा, वो इंफिनिटी से कम और विद इन 0 में रहेगा, वो बाउंडेड होगा। तो if that maintains xt, then if output also maintains, the value of yt also remains within that limit, 0 and infinity on ये अंदर में रहेगा, then the system is called BIBO। So the output of the system must be bounded for bounded input। So if input तुम्हारा bounded हो, तो output भी bounded होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा for 0 less equal to mod of xt that equal to that less than infinity, then क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट भी बाउंडेड होगा, ठीक है। तो टेक वन एग्जांपल, यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट सिग्नल ut ले सकते हैं, डेल्टी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको क्या निकालनी है यहाँ से,
तुमको देखना है, यू टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट विद इन दैट लिमिट, 0 से इंफिनिटी के अंदर में है कि नहीं, ठीक है। और आउटपुट भी वो 0 एंड इंफिनिटी के अंदर में है कि नहीं, ये तुमको दो चीज दिमाग में रखना है। एंड यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू टेस्ट द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स whether the system maintaining that conditions or not। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो एग्जांपल है वो है x y of t that is equal to x square t। now we have taken for input as ut, so xt is equal to ut हो गया। so क्या होगा, yt is equal to ut का स्क्वायर हो जाएगा, और ut का स्क्वायर करो और क्यूब करो, पावर ऑफ 4 दो, जो भी होगा वो तो ut ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का टू द पावर 4 भी 1 ही है, तो इसलिए 1 ही होगा, तो 1 का मतलब ut है। तो देखो yt तो स्टेबल है, yt का वैल्यू तो 0 इंफिनिटी के अंदर में है, इसलिए हम लोग क्या लिखा, सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल, ओके, बिकॉज yt इज इन बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। तो यहाँ पे yt का वैल्यू कितना मिलेगा, ut है, तो ये का वैल्यू क्या, मॉड ऑफ yt क्या होगा, मॉड ऑफ yt 1 है, तो इसलिए कोनो डाउट ही नहीं है, सिंपल है। हम लोगों का सिस्टम जो मैंने चूज किए हैं यहाँ पे वो स्टेबल है। वेरी गुड, नेक्स्ट गो फॉर सम अदर सिस्टम, yt इज इक्वल टू sin t xt। ना लो यहाँ पे xt इज इक्वल टू डेल टी लो, और ut डेल टी भी तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ut भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो xt इज इक्वल टू ut है, तो ये क्या हो जाएगा, yt इज इक्वल टू sin t इंटू xt में क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, xt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। तुम लोग जानते हो मॉड ऑफ xt और सॉरी मॉड ऑफ ut भी 1 है, और sin t क्या होगा 1, साइन जनरली -1 + 1 से अंदर में रहता है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी फाइनाइटी होगा, 0 और इंफिनिटी के अंदर में ही होगा, इसलिए ये सिस्टम भी स्टेबल है, ये सिस्टम भी स्टेबल है, ये स्टेबल है, समझ गया ना, क्योंकि साइन टी तो -1 + 1 से है, तो मॉड जो है ये विद इन 1 में ही होगा, ठीक है, और ये भी 1 में 1 है, तो इसलिए सिस्टम का जो मॉड्यूलस है, उसका जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो, एम्पलीट्यूड नहीं बोलूंगा, मैग्नीट्यूड जो है वो तुम्हारा 0 और इंफिनिटी की अंदर में है, तो इसलिए ये भी स्टेबल हो गया। ना एक तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, वो क्या है, yn, ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, yn ये अनस्टेबल होगा, yn इज इक्वल टू n इंटू एक्स ऑफ n। नाउ कन्वेंशनली यू टेक xn इज इक्वल टू un, तो ये क्या होगा, yn इज इक्वल टू n इंटू un हो गया। नाउ n इंटू un, un कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, बोलो ना, un 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक है कि नहीं, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, हाँ, और स्टेप लाइक होता है, डीसी टाइप होता है, 0 से इंफिनिटी तक, बट एम्पलीट्यूड 1 है ना, ये पे n दे दिया, ठीक है, n का मतलब क्या, when n is equal to 0, so yn is equal, y0 is equal to 0, if n is equal to 1, so y1 is equal to 1 or yn is equal to 1, whatever you can say, n is equal to 2, y is equal to 2, तो ये क्या है, लीनियर नेचर का है, दिस सॉर्ट ऑफ, n is equal to 0, yn 0, n is equal to 1, yn 1, n is equal to 2, yn is equal to 2, n is equal to 3, this is also 3। now n is, जो n का वैल्यू है सिस्टम का वैल्यू वही है, so इसलिए ये गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। so ये कहाँ जा रहा है, ये देखो, ये अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, yn का वैल्यू जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी, yn गो टू द इंफिनिटी, सो ये अनस्टेबल है, ये 0 से इंफिनिटी के अंदर में नहीं रहता है। एंड ये जो सिग्नल है, इसका जो नेम है, ये पार्टिकुलर नेम है इसका, ये जो सिग्नल जो मिला हम लोगों का लीनियर नेचर का, ये रैम्प सिग्नल कहते हैं, रैम्प, ओके, इसका रैम्प कहते हैं, ओके, जो रैम्प, ये देखो स्लोप का नेचर है, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, ये अनस्टेबल है, समझ गया ना, क्योंकि yn का वैल्यू 0 इंफिनिटी के अंदर में नहीं है, ये इंफिनिटी तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी तुम्हारा अनस्टेबल सिस्टम है। ये भी देखो, और एक एग्जांपल मैंने ले लिया, y of t is equal to -∞ to t x tau d tau। now
यू टेक एक्स टी इज इक्वल टू यू टी, तो ये क्या होगा बाबू, लिमिट क्या हो जाएगा, प्लीज बोलो मुझको, मैं खुश हो जाऊंगा। ये लिमिट का वैल्यू क्या Yes, sir. होगा, जब एक्स्ट्रा इज इक्वल टू एक्स टी और एक्स्ट्रा इज इक्वल टू यू टी मैंने ले लिया, तो तब तुम्हारा ये जो इंटीग्रेशन है वाई टी इज माइनस इन्फिनिटी टू यू टाउ डी टाउ, इसका ये जो लिमिट है, ये लिमिट तुम चेंज कर सकते हो। क्या होगा लिमिट बोलो ना, यहाँ 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी और 0 से टी कर सकते हो तुम, क्योंकि यू टी तो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए तुम इसको 0 Yes, sir. से टी भी लिख सकते हो, कोई और- प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 0 से टी। सर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू टी भी हो हाँ, सकता है तुम यहाँ सर। पे जो जो तुम लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तुम लिखोगे, वो भी जब तुम यू टी करोगे तो 0 से इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि यू टी, यू पीपल नो दैट यू टी ओनली एग्जिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। यस सर। ओके, तो इसलिए ये क्या होगा, टी लिख दिया तो अपन लिमिट टी रखो, यहाँ पे तुम 0 भी लिख सकते हो, हम यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये बेसिक थिंग है, तो तुम यहाँ पे 0 भी 0 से टी तक लिख सकते हो। तो यू टी का वैल्यू 0 से टी तक अंदर क्या होगा, यू टी का वैल्यू यूनिट है, सो 1 है, सो 1 मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा बेसिकली। सो टी Yes, मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा, टी 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 कांस्टेंट नहीं, टी मीन्स तुम्हारा क्या होगा, वो दैट टाइप ऑफ सिग्नल होगा। टी का वैल्यू 1 होगा तो वाई टी 1 होगा, टी का वैल्यू 2 होगा तो ये वैल्यू 2 होगा, टी का वैल्यू 3 होगा तो वाई टी 3 होगा, टी का वैल्यू 4 टेबल होगा। फंक्शन चलेगा सर। हाँ हाँ, ये रैंप फंक्शन होगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये इसलिए ये इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो है यहाँ पे जो मैंने चूज किए हैं, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि वाई टी का वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे आर टी, क्योंकि आर टी को नेचर ये आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट जो है वही बसे बैठेगा यहाँ पे, सो वाई टी इज अल्टीमेटली वी आर गेटिंग टी। सो टी का मतलब क्या है, टी 0 होगा वाई टी 0 होगा, टी और जब 1 होगा तो वाई टी 1 होगा, टी का वैल्यू 2 होगा तो वाई टी 2 होगा, टी का वैल्यू 3 होगा तो वाई टी 3 होगा, जैसे मान लो ये भी ये तरह भी होगा। ओके, तो टी का वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगा, वाई टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, तो इसलिए आउटपुट अनस्टेबल है। तो ये तुम्हारा सिस्टम जो था, ये सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ विल गो फॉर सम, ये एग्जांपल तुमको हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वो इनवेरिएंट टाइम इनवेरिएंट लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ये नोट भी दे दिया। और कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम किसी ने पूछा था मेरे को, तो मैंने बोला था कि ये सिग्नल भी हम बता दूंगा, ये भी सिंपल सा है, क्या है देखो, ये सिग्नल एक्सएन इज सेड टू बी कॉजल, कॉजल बोलेंगे हम, कहेंगे एक सिग्नल एक्सएन को, जब ये वैल्यू क्या होगा, इफ इट्स वैल्यू इज 0 फॉर एन लेस देन 0, मतलब क्या है, एन का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो सिग्नल का वैल्यू 0 होगा, सिग्नल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा नेगेटिव हार्म में, नेगेटिव साइड में सिग्नल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये जो होगा देन इट इज कॉल्ड कॉजल सिस्टम। मान लो यहाँ पे हम लोग वन एग्जांपल ले चुके हैं, दैट इज ए काइंड ऑफ एक्सचेंज ए टू द पावर एन यूएन, तो तुम जब यूएन घुसा दिया तो तुम लोगों को मालूम है कि सिग्नल एक्सएन भी 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, ये n इक्वल टू नेगेटिव में ये एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे un है, तो un जब 0 से इन्फिनिटी तक प्रेजेंट होगा तो एक्सएन भी 0 से इन्फिनिटी तक प्रेजेंट होगा, तो नेगेटिव पार्ट नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वन टाइम सर डेफिनेशन सर हाँ बोल पूछ दिया, लीजिएगा देखो सर। सुनो, जब सिग्नल का, सो ये कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल हो और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, जो भी हो होने दो, इफ दैट सिग्नल का वैल्यू n का वैल्यू जब 0 होगा और t का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू जब नेगेटिव होगा और t का टाइम का वैल्यू जब नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव जाएगा में सिग्नल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो प्रेजेंसी नहीं रहेगा, जब ये होगा देन इट इज कॉल्ड कॉजल सिस्टम। तो तुमको एक एग्जांपल लेना है, देखो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं, xn इज इक्वल टू और x1 n व्हाटएवर और yn you can say that, okay you can say that yn xn whatever, yn हम लोग आउटपुट को चूज करते हैं, इसलिए हम लोग xn लिखा है यहाँ पे, xn इज इक्वल टू a टू द पावर n un, तो ये जो सिग्नल तुम चूज किए हैं
इसका नेगेटिव वैल्यू होगा क्या? n का नेगेटिव में होगा? नहीं होगा, क्योंकि un है। तो un तुम जानते हो 0 से प्लस इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, तो xn भी 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ये कॉजल सिस्टम है, नेगेटिव में कोई नहीं वैल्यू है। ठीक है, ये भी और एक एग्जांपल है। सर आप बताए थे कैजुअल सिस्टम में कि सिस्टम नहीं, उसका सिस्टम का जो बहुत अलग है बाबू। हाँ, अच्छा अच्छा उसका सिस्टम, अलग होगा। हाँ हाँ हाँ, सिस्टम का बाबू अलग होगा। ठीक है, और सिग्नल अलग होगा। ये जो और एक सिग्नल देखो ले लिया, तुम तो जानते हो डिस्क्रीट सिग्नल के हम लोग इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हमारा और भी कुछ क्लास रहेगा, जो कन्वोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तब ये और भी पता चलेगा कि कैसे हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा दे दिया। ये सिग्नल जब डिस्क्रीट होगा, एक्शन होगा, तो ये हम लोग 1 2 -3 -1 2 लिख दिया। प्लीज बाबू तुम म्यूट कर दो। तो देखो यहाँ पे, देखो xn इजिकल टू 1 2 -3 -1 2 लिख दिया। जो सेकंड ब्रैकेट में जो ये हम लोग लिख चुके हैं, ये क्या है? ये है 1 2 -3 -1 2। ये जो एरो दे दिया, ये एरो मीन्स ये n का वैल्यू 0 है। ये यू पीपल कीप इन माइंड, जब एरो मिलेगा ना, एरो, तो एरो का मतलब दैट इंडिकेटिंग ओरिजिन, समझ गया ना? दैट इज n इज इक्वल टू 0 हियर। सो n इज इक्वल टू 0 में ये 1 है, माने एम्पलीट्यूड 1 है। n इज इक्वल टू 1 में 2 है। n इज इक्वल टू 3 में -3 है। n इज इक्वल टू 0 1 2 3, n इज इक्वल टू 3 में -1 है। n इज इक्वल टू 4 में 2 है। तो ये देखो n इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, n इज इक्वल टू -1 में यहाँ में कोई तुम्हारा तो वैल्यू है क्या? नहीं। n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है ये सीक्वेंस, तो इसलिए ये भी कॉजल सिस्टम है। और 1 के लेफ्ट में जो जो वैल्यू होगा ना, तो वो कॉजल नहीं होगा, वो नॉन कॉजल हो जाएगा। तो ये देखो नॉन कॉजल का हम लोग एग्जाम्पल ले चुके हैं। यहाँ पे देखो एक्स एन इज इक्वल टू 1 -2, यहाँ पे एरो दे दिया, यहाँ पे एरो, बीच में एरो। सो दैट मीन्स दिस इज एन इज इक्वल टू 0, ओरिजिन यहाँ है, एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 2 है। तो इधर क्या होगा? अनुष्का कुमारी अब आ रही है। हाफ एन आवर हो गया हम लोग क्लास। अनुष्का लेट क्यों हुआ? तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, देखो n का वैल्यू 0 है, और 2 लोग आ रहे हैं अटेंडेंस के लेने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए ये लोग आ रहा है। चलो चलते हैं। देखो n का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, n का वैल्यू 0 यहाँ पे है। तो ये इधर क्या है? n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है। लेफ्ट में क्या होगा? n का वैल्यू -1 है, n का वैल्यू -2 है। तो ये क्या है? n का वैल्यू नेगेटिव में भी है, एक्शन का वैल्यू n का वैल्यू नेगेटिव में भी है, इसलिए ये नॉन कॉजल है। तो डेफिनेशन के में क्या बोला देखो, ए सिग्नल एक्शन इज सेड टू बी कॉजल इफ इट्स वैल्यू इज 0। इफ इट्स वैल्यू इज 0 मींस एक्शन इज इक्वल टू 0 होगा फॉर n लेस देन 0, अदरवाइज द सिग्नल इज नॉन कॉजल। ये नेगेटिव में रहेगा तो ये नॉन कॉजल होगा। तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव तरफ जा रहा है, इसलिए कॉजल है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इसलिए ये नॉन कॉजल हो गया। और भी एक डेफिनेशन है एंटी कॉजल सिग्नल, वो क्या है? ये सिग्नल दैट इज 0 फॉर ऑल n greater equal to 0 इज कॉल्ड एंटी कॉजल। दैट मीन्स पॉजिटिव में इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 0 से प्लस इंफिनिटी तक सिग्नल का कोई वैल्यू नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड एंटी कॉजल। तो तुम लोग बोल रहा था, नहीं तो मैं ऐसा ही बोल देते तो ये अच्छा ही हुआ। कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम एंड एंटी कॉजल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से रखिए, दिमाग में रखिए। ठीक है, और जब ये तुम करोगे ना घर में, तुमको सोचना भी पड़ेगा सर ने क्या बोला है, ये क्यों ऐसा है, तुमको खुद दिमाग में भी ये रखना है, और खुद को कुछ हाँ थॉट लेना भी आना जरूरी है। तो ये सिग्नल भी हो गया और सिस्टम से हो गया, और 2 सिग्नल है हम लोगों के लिए, नहीं तो तुम्हारा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का लगभग खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग जो अब तक बोलो, कुछ कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल में हम लोग चले जाएंगे। एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, आई थिंक दैट sort of question will must come in your semester exam, एनर्जी और पावर सिग्नल में। मैंने, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा ईच एंड एवरी साल में पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल आता ही है। Sir, can you send the question of previous year? तुम्हारा जो JU2 का 1 साल ही हुआ है, हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा। और अदर जो यूनिवर्सिटी, देखो सिलेबस तो मोरलेस सेम ही होता है, तो और जो दूसरे यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन हम हमारा होगा ना, तो हम दे दूंगा। तो एक हफ्ता और टाइम दो, हाँ, हम जरूर भेजेंगे तुम्हारे गूगल क्लास में, हाँ, इस हफ्ता का एंड में हम दे दूंगा, वीकेंड में दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा कलेक्ट करना। Okay, sir. Thank you, sir. तो एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल जो है, देखो, तो एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल मींस यू टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ द सिग्नल, ओके, एंड द पावर ऑफ द सिग्नल। तो हाउ टू फाइंड आउट एनर्जी एंड द पावर? पीपल well known about the energy of the energy and the power of the signal, but still we some have discussions here. तो एनर्जी सिग्नल, मान लो तुम्हारा एक सिग्नल है xt, यहाँ पे हम लोग it और vt नहीं दिए, जनरलाइज किए हैं xt, तो वो भी करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ सिग्नल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग xt लिखना है। The energy of the signal xt is given as E of x, that is minus infinity to plus infinity xt square dt, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जब एनर्जी का वैल्यू एक्स का वैल्यू 0 और इंफिनिटी के अंदर ही होगा, दैट मींस फाइनाइट होगा, दैट मींस फाइनाइट होगा। इफ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज फाइनाइट, then is said to be energy signal, okay। If we are having the finite energy of the system, of the signal, then that signal should be energy. So then xt is said to be an energy signal if the energy of the signal occupies or lies in between 0 and infinity, that means it is having finite values. Now power of the signal, okay, xt is given as power of the signal. What is the formula to find out the power of the given signal? So px is to limit t tending to infinity 1 upon t minus t by 2 to plus t by 2 xt square dt, okay, xt square dt। तो ये माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2, तो रेंज कितना है, t है, माइनस टी बाई 2 टू टी बाई 2, तो ये रेंज कितना है, t है। जो दूसरा जो फॉर्मूला मैंने दिया है, एनी वन यू कैन चूज, एवरी टाइम वी आर गोइंग फॉर यूजिंग द फर्स्ट वन। बोलो सर। हाँ बोलो। इससे पहले वाला सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर, जो इसके पहले वाला जो कंडीशन आप बताए सर, ये तो 0 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt, ये जो एनर्जी फाइनाइट होगा, हाँ, ये एक्स निकालने है, इफ इट इज गोइंग टू इंफिनिटी देन वी कांट से इट्स एनर्जी सिग्नल। If the value of the energy of the signal lies in between alpha, 0 to infinity, that means it should be finite. Then we can say that the signal is an energy signal. Then you have to find out power of the given signal. So power px is equal to limit t tending to infinity 1 upon t minus t by 2 to plus t by 2 mod of xt square dt। तो ये देखो माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2, ये रेंज क्या है, टी है, माइनस टी बाई 2 टू टी बाई 2, तो रेंज टी है, इसलिए 1 बाई टी हो गया। यहाँ पे देखो 2t लिखे हैं हम लोग, वाई, देखो यहाँ पे माइनस टी थे प्लस टी तक, तो रेंज क्या है, 2t है कि नहीं, माइनस टी से शुरू हुआ टी तक गया, तो रेंज क्या है, प्लस टी माइनस और माइनस टी, सो 2t हो गया, इसलिए 2t यहाँ पे है, 1 by 2t है। तो so after using this formula, if you have the value px between 0 and infinity, then xt is said to be power signal. So using these two formula we can find out energy and the power. तो यही बात है, तुमको पावर निकालनी है, पावर सिग्नल बोला टेस्ट करने के लिए,
तो तुम पावर निकाल लो, एनर्जी सिग्नल है कि नहीं बोला तो तुम फाइंड आउट एनर्जी। तो ये 2-3 चीज तुमको दिमाग में रखना है। जो सिग्नल एनर्जी होगा वो पावर कभी नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। जो सिग्नल एनर्जी होगा वो पावर सिग्नल नहीं होगा, जो पावर सिग्नल होगा वो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। जो देखो काजल कुमारी अब एंटर कर रही है, बोलो ना तुम लोग, तो ये अटेंडेंस के लिए नहीं इधर आ रही है, तो बात कुछ नहीं है। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ, लेस देन 1 मिनट है, खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इफ एनर्जी of the signal is finite, then power of the signal will be 0। जब एनर्जी फाइनाइट होगा उसका पावर 0 होगा। हम दिखाएंगे, हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, हम जानते हैं इसलिए हम लोग लिखे हैं। और इफ पावर ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट, पावर फाइनाइट है, दैट मीन्स तुम्हारा पावर सिग्नल है,